Hello students, in this lecture we will study about the molecular orbital diagram of pyrrole. As pyrrole is a heterocyclic compound, hetero means the different and the cyclic means the cyclic compound. So this is the cyclic compound having one heteroatom. Hetero one atom, that is the nitrogen atom, it is other than the other ring atoms. बाकी ring atoms इसमें क्या है? Carbon. So if the compound cyclic compound containing one or more heteroatom other than the carbons, then the compound is termed as heterocyclic compound. And this pyrrole is a 5-membered heterocyclic compound. Look at the number of the atoms in the ring. This is the one atom. Second, this corner denote the carbon. This is the carbon, this is the carbon, and this is the carbon. This is the 5 atoms in the ring. So this is the 5-membered heterocyclic compound. Now we will going to study about the molecular orbital diagram of pyrrole. कैसे इससे bonds बनाए और कैसे ये बना है. Now look at the atoms in the ring. There are 4 carbon atom in the ring and the one atom is nitrogen. So the carbon having electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2. अगर एक्साइटेड स्टेट की बात हम करें तो देखिए आउटर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. तो आउटर मोस्ट शेल में आपका क्या है 2s2 2p2 एक्साइट करेंगे तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा. ठीक है. सिमिलरली द अनदर एटम दैट इज इंक्लूडेड इन द रिंग इज द नाइट्रोजन. So the atomic number of nitrogen is 7 and electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. Again the outermost shell electrons will take part in the bonding. So in the excited state देखिए again the 2s का एक इलेक्ट्रॉन है that will be excited to the 2p. और देखिए लास्ट ऑर्बिटल में हमने इसको डाला है. ठीक है. उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे अब. ठीक है. इतना क्लियर. उसके बाद देखिए एवरी एटम इन द रिंग, रिंग के अंदर जो एटम्स इंक्लूड है कौन कौन से एटम इंक्लूड्स है ये देखिए 4 कार्बन और 5वां क्या है नाइट्रोजन. तो एवरी एटम इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2. सो वी आर कंसीडरिंग अबाउट द hybridization of these carbons and this nitrogen. So every atom in the ring is sp2 hybridized. sp2 hybridized means one s orbital and the 2p orbital get intermixed with each other and generate 3 sp2 hybrid orbital. देखिए इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, +2 से पढ़ते आ रहे हो. मतलब क्या है कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p की ऑर्बिटल, दोनों की एनर्जी अलग अलग है. s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन तीनों मिक्स होके दे विल जनरेट द न्यू ऑर्बिटल्स. वो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे. उन नए ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सबकी सेम है. उन्होंने ऑर्बिटल नया बनाया दैट इज द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे तो डेफिनेटली 3 ही ऑर्बिटल बनेंगे. और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पार्ट ले रहे थे तो डेफिनेटली इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. ठीक है. सिमिलरली द 1s and the 2p orbital of nitrogen also get intermixed with each other and generate the 3 sp2 hybrid orbitals. ये आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे. हाइब्रिडाइजेशन आप इसको बोल सकते हो. हाइब्रिडाइजेशन ही हो रहा है यहाँ पे एंड विल जनरेट द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. अब हमने क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है 1s and 2p आर इंक्लूडेड इन द हाइब्रिडाइजेशन बट दिस लास्ट p ऑर्बिटल लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड. सो दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. दिस इज द p ऑर्बिटल और ये कैसा है अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital. Similarly, in the nitrogen also one unhybridized p orbital, but the difference is that in the unhybridized p orbital of carbon contains the single electron, whereas the unhybridized p orbital of nitrogen contains 2 electron. Now look at these sp2 hybrid orbitals. कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. एवरी कार्बन कंटेन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द each carbon uses its sp2 hybrid orbitals in order to form sigma bonds.
बॉन्ड्स बनाएगा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए। तो देखिए कैसे यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, उसके लिए आप देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं कार्बन। देखिए 1 कार्बन, दिस इज द अनदर, द एटम इन द रिंग आर 4 carbons and the last one is the nitrogen. Okay, now this carbon have 3 sp2 hybrid orbitals. This carbon also have 3 sp2 hybrid orbital. इसके पास भी और नाइट्रोजन के पास भी. So each carbon uses its 3 sp2 hybrid orbitals in order to form the sigma bond. So one sp2 hybrid orbital of this carbon and the one sp2 hybrid orbital of this carbon overlaps and gives you one sigma bond. तो ये bond किसके कारण बना है? This is due to the sp2 hybridized overlapping of the sp2 hybrid orbital. This is the sigma bond. सिमिलरली देखिए 3 है अब इसके पास, तो 1 तो यहाँ पे यूज हो गया. द सेकेंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद दिस एडजेसेंट कार्बन. सो अगेन दिस बॉन्ड इज formed by the hybridized overlapping of sp2 hybrid orbital. Now one orbital is left with this carbon. ठीक है, एक तो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया, एक इसके साथ. द थर्ड वन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग विद दिस हाइड्रोजन. साइलेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये साइलेंट है. लुक एट द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन, देखिए 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, and this is the third bond. Fourth valency इसकी खाली है. That fourth valency is satisfied by the hydrogen. So the third sp2 hybrid orbital of this carbon used in the bond for sigma bond formation with this hydrogen. अब हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? 1s orbital and the sp2 hybrid orbital of this carbon used in the bond formation. Similarly ये भी 3 यूज करेगा, एक तो इधर यूज हो चुका है, सेकेंड वन विल बी यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, sigma bond formation with the adjacent carbon, and the third one will be used in the bond formation with this hydrogen. तो कार्बन का sp2 orbital और हाइड्रोजन का 1s. Similarly for this carbon, now this carbon have already uses one sp2 hybrid orbital in the bond formation with this carbon. The second sp2 hybrid orbital will be used in the bond formation with this nitrogen. क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी 3 sp2 hybrid orbital है. So this sigma bond is formed by the overlapping of sp2 hybrid orbital. Similarly देखिए कितने हो गए अब इसके यूज, 1 sp2 hybrid orbital यूज हो गया. सेकेंड, the third one will be used in the bond formation with hydrogen. हाइड्रोजन का 1s orbital and कार्बन का sp2. Similarly for this carbon, it has already uses 1. Second one will be used in the bond formation with this adjacent nitrogen, and the third one will be used in the bond formation with hydrogen. Now look at the nitrogen. Nitrogen also have 3 sp2 hybrid orbital. One is get used in the bond formation with this adjacent carbon, another will be used in this, and the remaining one will be used in the bond formation with hydrogen. 1s of hydrogen and sp2 hybrid orbital of nitrogen. Clear? अब आप देखिए ये जितने भी बॉन्ड बनाए हैं मैंने, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर सिग्मा बॉन्ड. ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं. नाउ लुक एट दिस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ईच कार्बन कंटेन 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, whereas the nitrogen also contain 1 unhybridized p orbital. तो unhybridized p orbitals जो हैं that will present perpendicular to the plane. ये तो प्लेन में है. देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होता है तो शेप क्या रहती है? प्लेनर रहती है. ये प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में ऐसे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. अब हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, तो मैंने थोड़ा देखिए ये बनाया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. इस कार्बन का बनाया, इस कार्बन का भी बना दिया, इस कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और इस कार्बन के पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. नाइट्रोजन ऑल्सो कंटेन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. क्लियर? ठीक है. नाउ द ईच अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन. कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखिए मैंने रखा है यहाँ पे. Whereas the unhybridized p orbital of nitrogen contain 2 electrons. इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से. इसको थोड़ा रब करके बना देती हूँ.
ये था आपका sp2 sp2. Now this unhybridized p orbital, this contain the single electron. ठीक है, तो ये जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बने हैं, all these are perpendicular to the plane. Now look at the number of electrons in these unhybridized p orbitals. Look at this, 1 2 3, इसमें 2 है, देखिए 4 5 and 6. There are 6 pi electrons. These are the pi electrons present in the unhybridized p orbital of the atoms of this ring. So this unhybridized p orbital will overlap sideways, and the upper lobe will overlap with the upper lobe of the adjacent p orbital, and the lower lobe will overlap with this lower lobe. Similarly, अब इसका adjacent ये भी है, so upper lobe of this p orbital overlap with this upper lobe, and the lower lobe will overlap with this lower lobe. इसी तरह से आप साथ साथ फॉलो के अपर लोब और लोअर लोब को आप ओवरलैप कर दीजिए. देखिए अपर लोब यहाँ ओवरलैप हुई, लोअर लोब यहाँ, अपर लोब ओवरलैप विद दिस, लोअर लोब विद दिस. दिस इज द अपर लोब एंड दिस इज द लोअर लोब. अब ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर जैसे जैसे हमने बनाया वो आपको समझ में आ गया आपने बनाया कैसे है इसको. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कलर्ड पेन से बनाएंगे, दैट विल बी मोर इजियर टू यू. तो दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम. अब देखिए जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज बनाया है, आप वैसे स्टेप वाइज बनाओगे, दैट विल बी इजियर टू यू. नाउ लुक एट दिस, देयर आर द 6 pi इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रिंग. इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे? 6, क्योंकि 4 तो कार्बन के पास थे, एक एक हर कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास तो. सो देयर इज 6 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर रिवॉल्विंग अबव द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन, जस्ट लाइक द बेंजीन. जैसे कि हमने बेंजीन में करा था उसी तरह से देयर इज अ 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड. लुक एट दिस, दिस इज द planar ring, and this is the pi electron cloud overlapping, moving above the plane and the below the plane. This is the pi electron cloud, just like the benzene. This is the pi electron cloud. ठीक है, और आपको पता है बेंजीन में आप कैसे करते थे. दिस इज द बेंजीन, उसमें बेंजीन में आपके कार्बन एटम्स थे, अबव द प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिलो द प्लेन. ठीक है, तो दिस इज द molecular orbital diagram of pyrrole. You have to explain each and everything. I have just written here some terms only, but जो भी आपको मतलब आपको explain करना है, जो मैंने बोला है, you have to write. तो इस तरह से हम molecular orbital diagram of pyrrole को easily explain कर सकते हैं. इसी तरह से आप थायोफीन का और आप फ्यूरान का भी कर सकते हो. थायोफीन में हेट्रोएटम आपका सल्फर हो जाएगा, और फ्यूरान में जो हेट्रोएटम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.